ये कितना विरोधाभास है कि कहते हैं कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और आप उसको जनरल की उतना ही आप फी भी आप ले रहे हैं, फी कंसेशन भी नहीं है। इवन फी कंसेशन भी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गरीब सवर्ण का बात है। 10% का जो आरक्षण दिए गरीब सवर्ण को आप दिए हैं, उनके पास आर्थिक रूप से उतना मोहताज है वो लोग कि उनके पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं होता है। 1,000 रुपया आप फीस रखते हैं तो वहाँ पे आप 200 लो। अब हम तो कहेंगे माफ़ करो, क्योंकि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू SC ST OBC। It is totally different from other sections of society who are getting the privilege. लेकिन सवर्ण को बताएं कि ये जो एज रिलैक्सेशन है ये कहाँ है? Sir, in January 2019, our government has taken a historic decision by getting legislation passed in both the houses of parliament to grant 10% reservation to economically weaker sections, both in educational opportunities and also in employment. This was indeed a historic decision because this demand existed for several decades, and the poor people born in certain social groups always wondered why they have not been given any affirmative, why there is no affirmative action in their support, and therefore this government has done something that history would remember for a long time. 24th constitutional amendment made this possible. And economic deprivation and poverty are as compelling and as deprivational factors as social backwardness. And therefore, a lot of students, children born in in poverty, belonging to unreserved classes, they either delay their education due to economic reasons, or they sometimes have to break their education because of poverty and because of economic difficulties. And therefore, my appeal to the government is to extend age relaxation facility for the upper caste, those who are eligible for 10% EWS reservation. They may also be given same kind of age relaxation as is given, extended to the students belonging to the OBCs or SCs and STs. In the case of OBCs, when the act was made in September 93, such a age relaxation provision was not there, but then this was provided for after about 13-14 months. Since a similar time has elapsed in the case of EWS reservations also, my appeal to the government is to implement this as early as possible. We met the Honorable Minister for Social Justice, Thawarchand Gehlot ji, who is the leader of this house. He responded very positively, but my appeal is to expedite this decision as the UPSC Civil Services Examination notification is likely to come out sometime during this month. So my appeal to the Honorable Minister and the government is to expedite this decision so that students can benefit from this particular age relaxation facility from this year itself. Nearly 25,000 eligible students would benefit if we are able to do this soon. So my appeal is to offer age relaxation and to do this from this year onwards. Thank you, sir. सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर को रखने का मौका दिया। विगत 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को के लिए 10% आरक्षण देने का EWS कोटे के तहत किया। इस कोटे के तहत आने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को छूट मिलती है। मौजूदा समय में मैं सरकारी नौकरी में आरक्षण के आधार पर जिन्हें कम उम्र की छूट है, उनमें SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। सतीश जी, प्रियंका चतुर्वेदी। Thank you so much, Honorable Chairperson, for giving me a chance to speak. I rise to speak about an urgent matter about the age relaxation to economically weaker section.
In January 2019, central government had taken a decision by getting a legislation passed in the parliament, both houses of the parliament, to give 10% reservation to economically weaker sections of unreserved category, both in educational opportunities and also in employment. In India, sir, as you would know, there are many children who are in unreserved classes who come from economically weaker background. They either delay their education or have to take a break in their education because of lack of financial support. However, the newly implemented quota does not offer any relaxation in age limit or number of attempts for a candidate for central government jobs. Right. I would like to bring to your notice, many state governments have implemented this age relaxation, but the central government jobs still do not have that. And in fact, even in the recent junior engineers dated Feb 1st notification, recruitment notification, Commission has not offered age relaxation for EWS, but other reservation beneficiaries have got it. So I urge upon the government to extend age relaxation facility for the EWS children as the same is permissible and within the ambit of the Act passed by the Parliament. Delay in extending the reservation benefits to them will have an adverse impact on their career, sir. Right, I urge you to think of it, sir. Thank you. फर्स्ट डे जब से ये ईडब्ल्यूएस बिल आया था पार्लियामेंट में, उस दिन ही कहा गया था कि ओबीसी का जो प्रावधान है, जितना उनको बेनिफिट्स मिलता है, आयु सीमा में छूट उनको 3 साल का है, अटेम्प्ट में भी 3 साल का है जो यूपीएससी का है। वैसे ही जितने भी सरकारी संस्थान है और जितने भी सरकारी नौकरियां भर्ती होती है तो उसमें आयु सीमा में छूट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में छूट मिलती है। तो हमें ओबीसी के पैरेलल जो है, तो हमारा जो हक है उस हक के लिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग आज खुद स्टूडेंट यहाँ पे रोड पे जंतर मंतर पे आके हम लोग को आना पड़ा, क्योंकि ना हमारा बात सरकार सुन रही है, ना ही हमारे बात कोई विपक्ष की पार्टी सुन रही है, चाहे वामपंथ की हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ स्टूडेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप हम लोग को नहीं लेना है। हमने अपना जो हक है एग्ज़ाम देने का, जो अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम आ रहे हैं तो हमें अपना हक जो ओबीसी का जो 8 साल 3 अटेम्प्ट और 35 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे हम लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग को आश्वासन दिया जाए कि हमारा किस तारीख तक हम और कि हमारा ये चीज़ प्रोविज़न ये लागू हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि अभी आप देखिए 3-4 वैकेंसी अभी आके निकल गई। यूपीएससी का 3 दिन के बाद डेट खत्म हो जाएगा, एफसीआई खत्म हो गया, एसएससी जेई का भी डेट खत्म हो गया है। इवन 1.3 लाख नौकरी 1,30,000 नौकरी अभी रेलवे में भी आया है, जो कि पीयूष गोयल जी बहुत ही एकदम अच्छे से बोल रहे थे कि इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण भी है। लेकिन जो आरक्षण आप 10% दिए हैं, आप 4 साल के बाद नौकरी निकाल रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी अगर 26 साल का उस समय रहा होगा, 27 साल का, उसका तो एज 31 साल हो गया, वो तो आउट हो गया 1 साल के कारण। तो आप 10% का आरक्षण दिए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट कीजिए ओबीसी के तर्ज पे। जितना भी ओबीसी को सरकारी आप स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो यूपीएससी चाहे केंद्र सरकार का जो भी नौकरियां भर्ती आती है, तो जो भी ओबीसी का जो बेनिफिट मिल रहा है, या तो एज रिलैक्सेशन में हो, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन में हो, चाहे उसको फॉर्म भरने में छूट भी नहीं है। तो कहना है सर कि सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया, खुशी की बात है। देखिए, सवर्णों को 10% का जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि 50.50% अनारक्षण था, उसी में से 10% हमारा जो जेबी में जो हमारा चॉकलेट लॉलीपॉप पड़ा हुआ था, उसमें से 10 को निकाल लिया और 10 निकाल करके आर्थिक आधार पे 95% लोगों को बांट दिया। और 95% सिर्फ लोगों को नहीं बांटा, ये बहुत बड़ा जुमलेबाजी है। देखिए, सारे आरक्षण जो हैं, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण है या ओबीसी का मंडल कमीशन के तहत आरक्षण है, उसमें नौकरी के लिए अलग अलग नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग एज का रिलैक्सेशंस है। कहीं 3 वर्ष का है, कहीं 5 वर्ष का है, कहीं 7 वर्ष का है। ये लेकिन जो लड्डू दिए हुए जुमला, 3 स्टेट में और चुनाव हार गए, हम लोग समानता का अधिकार है, SC ST गेट के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे, तो उनको लग रहा है सवर्ण सब नाराज है, हमको वोट न देगा, तो सवर्ण को पटाने के लिए एक लॉलीपॉप दिए। हमारा एज वहीं पर रोका गया है। जैसे यूपीएससी कितना था, 27 वर्ष ही है, क्यों नहीं है उसमें 31 वर्ष किया गया, 30 वर्ष किया गया, जबकि SC ST OBC में वो 32 वर्ष के आसपास है। सुनिए, रुके, ये लड्डू पहनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ कहते हैं 8 लाख रुपया
से नीचे अगर आमदनी है तो आपको हम आरक्षण देंगे। हाँ, एक तरफ इनकम टैक्स कहते हैं 2.5 लाख से ऊपर आपने कमा लिया तो आपको इनकम टैक्स लगेगा। एक अभी न कर दिया भैया, बजट में आया तब न कर दिया, तो 5 लाख कर दिया, तो कहाँ 8 कहाँ 5। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत योजना एक चली हुई है पूरे भारतवर्ष में। गोल्डन कार्ड कहा जा रहा जी, है। गोल्डन कार्ड 50 करोड़ लोगों को 55 लाख रुपया हेल्थ सब्सिडी दिया जा रहा है। उस योजना में जनरल कास्ट, हम लोग जनरल कास्ट में आते हैं, जनरल कास्ट के लिए उन्होंने कहा है 2 कट्ठा जमीन गलती से और 1 मोटरसाइकिल आपके पास है तो उस योजना के अंतर्गत आपको लाभ नहीं मिलेगा। भाई साहब, हम जनरल जो आपको आ रहे हैं कि हमारा एक सेकंड, हम जो कह रहे हैं कि आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, वहाँ 10 लाख, मतलब कि 5 सवर्ण को दिया है फिर भी सवर्ण नाराज है। नहीं, दिया कुछ नहीं है, दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। अगर दिया है तो एज रिलैक्सेशन भी दो, जो सारे आरक्षण हैं, जो नियम है एज रिलैक्सेशन का। और कट ऑफ क्या होगा भैया, जनरल तो इसी ब्रिलियंट था ना, ब्रिलियंसी से नौकरी ले रहा था ना, उसका कट ऑफ कहाँ जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कट ऑफ 90% तक गया है, 74% है। तो मिनिमम कट ऑफ क्या होगा, ये लड्डू दे रहे हैं क्या? ये हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जनता समझ रही है। हमारा जेबी का लॉलीपॉप हमरे 50% में से 10% निकाल करके अब 95% लोग को बांट दिए। हमको बेवकूफ़ बना रहे कि हमको 10% दे दिए। भाई साहब, मैं एक बात कहता हूँ, बंद करो, बंद करो, ये बंद करो। जितना आरक्षण है ना, उसी के अंदर आर्थिक आधार पर लेके आइए। और जो वंचित गरीब जो गांव कस्बे में रहते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जो 10% लोग जो आरक्षण ले रहे हैं, रामविलास जैसे लोग, तो जिनको आरक्षण मिल गया 72 वर्षों में, उनको निकाल दो इस आरक्षण की परिधि से। और जो बचे हुए जिस कास्ट का, जिस वर्ग का जो आरक्षण है, जो उनके वंचित है, उनको जो उस वर्ग में जिसको आरक्षण मिल गया, वो अपना आरक्षण छोड़ के, जैसे नरेंद्र मोदी जी खूब कौन सा वो गैस सब्सिडी का जो खूब, हाँ, उज्ज्वला योजना खूब अनाउंसमेंट किए ना, कि जो भी अमीर आदमी है, जिसको अच्छा आमदनी है, वो गैस सब्सिडी छोड़ दे और गरीबों को जाने दे ना, तब ना गरीब को दिए। तो हम वही अपील करते हैं नरेंद्र मोदी जी से और सारे सरकार से, जो भी अपना ये लोग कर रहे हैं, कि भाई साहब आप आरक्षण में भी यही नीति लाइए कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया ना, वो आरक्षण से परिधि से बाहर जाए। और जिसको नहीं मिला है, गांव वंचित के, आम दलित को, आम बैकवर्ड को, आम अति पिछड़ा को, उसको आरक्षण के तहत लाया जाए, ताकि उनकी भी समृद्धि हो। और वो 72 वर्षों में जब 29% गरीबी, आज भी गरीबी हटाओ कहिया से नारा चल रहा है, तो वो गरीबी अगला 10 वर्ष में खत्म हो, ऐसी योजना बने। चलिए, मतलब कि इंजीनियर रविंद्र सिंह समझ गए हैं, कल सारी जनता को इन बातों से रूबरू करा देंगे। नहीं, मैं 6 महीना में गांव-गांव जाके जनता को सब समझा चुका, इसीलिए ना कल जनता आएगा क्वेश्चन करने। सीख जाओ भाई, समझ जाओ। राजनीतिक पार्टी सब रैली में क्वेश्चन भी हो सकता है। अरे क्वेश्चन ही तो है, रैली में तो सिर्फ संबोधन दिया। नहीं, दूसरी की रैली तो पैसा कौड़ी पर जनता को ढो ढो करके लाया जाता है। यहाँ तो आम जनता जागरूक होकर पुनर्जागरण क्रांति के लिए चुपचाप अपने अपने आ रहा है, समझे ना। तो मतलब कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आप तैयार हैं, कल से शंखनाद कर दिया जाएगा। शंखनाद कल से पुनर्जागरण क्रांति की शंखनाद है, जैसे संपूर्ण क्रांति हुआ था, कांग्रेस को उलट दिया गया था। चंपारण यात्रा जैसी आप यात्रा कर चुके हैं। जी, चंपारण से किए, 100 साल बाद, याद रखिएगा।